सो एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एंड देन विल स्टार्ट. So hello, good morning, good evening, everyone. Welcome to the bi-weekly CSI Connect program. I'm your host for today, and please allow me to introduce our group. The CSI, the Cancer Survivors in India, a Facebook group founded by Savan Vishwakarma, a cancer survivor in 2015. Our primary aim is to provide support to individuals facing cancer and their caregivers. Currently, we have about 3,800 members in our group. Our key areas we focus on are providing emotional, psychological, and social support, spreading knowledge about cancer diagnosis, promoting awareness about dangers of unproven alternative treatments, working to reduce the negative opinion and discrimination surrounding cancer, developing financial resources, offering support for matrimony matters, fundraising to assist people financially, creating a social movement to recognize cancer as illness and enhance the lives of patients. In January 23, we are registered as class to legalize our activities. Our guest today is Dr. Manisha Singh, currently serving a consultant in palliative medicine at the Sultan Qaboos Comprehensive Care Center Research in Oman. She has specialized training in onco anesthesia and palliative care from AIMS Delhi in the Indo-American Cancer Association and Gujarat Cancer Research Institute, Ahmedabad. Dr. Manisha possesses over 20 years of expertise in palliative care and pain management. In addition to her professional work, Dr. Manisha also manages NGO called Atmaja in Ahmedabad, which provides free palliative care to cancer patients. Today, Dr. Manisha will help you to understand many aspects of palliative care, which is about caring patients. We will learn it's not just for very end of life, but we can actually improve a person's life when they have cancer. So I'm uh, over to you, Dr. Manisha. Thank you for joining the session. Uh, you are not audible, ma'am. Hello, is it okay? Yes, Yeah. yes, it is So okay. I would like to thank you. Thanks to all CSI group members for giving me this chance to at least clear out some myths associated with palliative care. And I would like to wish all of you a very happy Navratri. Uh, Mehul bhai, can you share my slides? Is Mehul bhai there? Yes. So आज हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट पैलेटिव केयर, मतलब जितनी भी भ्रांतियां हैं पैलेटिव केयर के बारे में. लोगों ने जो बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियां लेके रखी हुई है कि पैलेटिव केयर हमेशा एक एंड ऑफ लाइफ केयर के साथ ही एसोसिएट कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है. तो इसलिए मैंने सोचा आज ये इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नया बताऊं मैं पैलेटिव केयर के बारे में, ताकि आप सब लोग को भी इसमें एक हेल्प मिले कि किस टाइम पे पैलिएटिव केयर मदद कर सकता है ऐसे पेशेंट्स की जो अपनी कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी भी. तो नूर भाई चेंज करिए, चेंज प्लीज. Yeah. सो ये एक फोटोग्राफ है. मुझे नहीं पता कितने लोगों को हमें देख के यही फीलिंग आती है. कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि जो भी लोग हमें देखते हैं उनको ये फीलिंग आती होगी कि अगर पैलेटिव में पेशेंट को दे दिया है मतलब तो बस यही है कि हम यमदूत बन के हमें देखते हैं लोग. सो Yes. इसलिए बहुत पर्टिनेंट है कि ये बहुत ही गलत, बहुत ही बड़ी गलत फहमी है लोगों के बीच. और इसी चीज को आज मैं दूर करना चाहूंगी आप सब लोग के साथ. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज.
नेक्स्ट। तो पैलेटिव केयर एक्चुअली होता क्या है? देखो, अगर किताबों में तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन मिलती है, WHO की एक डेफिनेशन है, बट बेसिकली उसको अगर हम उसकी जिस्ट निकाले तो ये होता है कि पैलेटिव केयर या पैलेटिव मेडिसिन जो है वो किसी भी पेशेंट की जो एक लाइफ लिमिटिंग इलनेस, एक ऐसी इलनेस जिससे हमें पता है कि ठीक होगा नहीं होगा नहीं पता है, ऐसी इलनेस से जो सफर करता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। और वो हम कैसे करना चाहते हैं? हम उसकी सफरिंग कम करके करते हैं। सफरिंग खाली पेशेंट्स की नहीं, केयर गिवर्स की भी सफरिंग हम कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये हम कैसे करेंगे? इसमें पैलिएटिव मेडिसिन का हेल्प करता है अर्ली डिटेक्शन, अवेयरनेस और ट्रीटमेंट। जो भी ये सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के, इन सब चीजों के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की सफरिंग कम हो, और वो सफरिंग कम होगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। और ये हम कैसे करते हैं? हम अकेले नहीं करते। पैलिएटिव मेडिसिन कंसल्टेंट या डॉक्टर एक अकेला नहीं काम कर सकता। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, क्योंकि ये जो सफरिंग है ये सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, ये साइकोलॉजिकल होती है, ये फाइनेंशियल होती है कई बार, ये स्पिरिचुअल होती है कई बार। जो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग मेरे पेशेंट्स में मैं बहुत ज्यादा यहाँ देखती हूँ, एक एग्जिस्टेंशियल सफरिंग बहुत होती है। जो ये एक क्वेश्चन होता है अपनी डिग्निटी का, एक क्वेश्चन होता है कि मैं ही क्यों, ये वाला जो होता है ये बहुत बड़ा सफरिंग का पार्ट होता है पेशेंट का। अगर हम फिजिकल सिम्टम्स छोड़ दें तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और इन सबको पैलिएटिव मेडिसिन एक साथ एड्रेस करता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इसको हम पहले दिन से इन्वॉल्व करें किसी भी इस तरह की बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को नहीं पता है, डॉक्टर्स को भी बहुत कम नॉलेज है और बहुत मिसकंसेप्शन है इस फील्ड के बारे में। और इसलिए 2020 में एक ये सर्वे हुआ था, ये तो अमेरिकन पॉपुलेशन है जो हम मानते हैं कि बहुत एजुकेटेड है और जिसे काफी कुछ ज्ञान होता है हमारी पॉपुलेशन के कंपेयर टू, बट वहां पे उन्होंने ये सर्वे किया अवेयरनेस के ऊपर और मिसकंसेप्शन का पैलिएटिव केयर का जनरल पब्लिक पे। नेक्स्ट प्लीज। और उन्होंने ये पाया, देखिए इसमें ये पाया कि पैलिएटिव केयर के बारे में जानते ही खाली 28% लोग थे। ठीक है, जो जिन्होंने ये नाम सुना था। इसमें से भी जो 44% लोग थे इस 28% में से, ऑटोमेटिकली डेथ का ही सोचते हैं अगर पैलिएटिव केयर की बात करें तो। 38% लोगों ने इसको हॉस्पिस केयर से इक्वेट किया, और 17% लोगों को लगता है कि अगर हम पैलिएटिव केयर को पेशेंट दे दिया मतलब कि अब सारा ट्रीटमेंट खत्म। ठीक है। और 16% लोग ये समझते हैं कि अब अगर पैलिएटिव केयर में गया पेशेंट मतलब कि अब सबने उस पर गिव अप कर दिया, अब उस पेशेंट के लिए कोई होप नहीं बची है। और ये सब की सब मिथ्स है, और इसी को हम क्लियर करने आज मिले हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो पैलिएटिव केयर में लोगों की क्या कॉमन मिथ्स हैं? एक तो सबसे पहले मैंने जो बोला कि 16% लोगों को लगता है कि अब हमारे डॉक्टर ने हमारे ऊपर गिव अप कर दिया। जब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ये बोल देते हैं कि कुछ भी नहीं बचा, या अगर कोई कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या कोई सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी पे जाना है, तो उनको लगता है कि ठीक है अब। और अगर कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और अगर पैलिएटिव मेडिसिन को रिफर किया है तो लोगों को वो पैलिएटिव सुनते ही लगता है कि बस अब इन्होंने तो हमारे ऊपर गिव अप कर दिया, अब हमारे लिए कोई होप नहीं बची है। और इसीलिए ये पेशेंट हमको दूसरे डॉक्टर्स के पास रेफर कर दिया है, या फिर उनको लगता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा है। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबको लगता है सिर्फ कैंसर के लिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कोई भी लाइफ लिमिटिंग इलनेस के लिए है। खास करके जो एंड स्टेज रीनल डिजीज होता है, जो बार बार डायलिसिस पे होते हैं, जिनकी दोनों किडनियां खराब हो जाती है, या फिर जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, मायोपैथीज होती हैं, न्यूरोपैथीज होती हैं, जो टोटल पैराप्लीजिया जैसा होता है पेशेंट को, या क्वाड्रिप्लीजिया होता है। ऐसे बहुत सारी डिजीज हैं जहाँ पे इसके अलावा भी यूज होता है, और ये सब पेशेंट कोई इमीडिएट फ्यूचर में नहीं मरने वाले होते हैं। तो इनके साथ तो हमारा एसोसिएशन लंबा चलता है। तो इसलिए इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर पैलिएटिव केयर इन्वॉल्व है तो पेशेंट जाने ही जाने वाला है। इसलिए ये चीजें तो बिल्कुल दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है या गिव अप कर दिया है, या सिर्फ ये बूढ़े लोगों के लिए। ये भी एक अमेरिका में कंसेप्ट है कि एक जीरियाट्रिक पैलिएटिव केयर एक अलग से सब स्पेशलिटी है। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, ये किसी भी एज ग्रुप के लिए। इवन बच्चों में अगर कैंसर है तो वो भी पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर में आते हैं, और अगर कैंसर नहीं है, नॉन कैंसर भी है तो जैसे ऑटिज्म है, वो भी इस पैलिएटिव केयर में आते हैं। तो इसलिए ना एज का कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन है और ना डिजीज का कोई रिस्ट्रिक्शन है।
नेक्स्ट प्लीज। और एक और बात होती है, हमारी कंट्री में थैंकफुली ये देखने को नहीं मिलता, बट मेरी एक कलीग अभी कनाडा से आई है, वहां पे उसने बोला कि बहुत इजीली अगर पेशेंट ठीक भी है, चलता फिरता भी है, तो बहुत इजीली ये लोग उसको सिडेट कर देते हैं। तो वो भी एक गलत बात है, वो हम नहीं करते हैं, और इंडिया में तो थैंकफुली बिल्कुल नहीं करते हैं। और फिर एक और मिथ जो सबसे बड़ा है मॉर्फिन का। मॉर्फिन के लिए लोगों के पास या तो ट्रेनिंग नहीं है, या तो डॉक्टर्स भी बहुत डरते हैं प्रिस्क्राइब करने के लिए, और उससे ज्यादा पेशेंट डरते हैं मॉर्फिन लेने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में एक अजीब सी चीजें हैं कि मॉर्फिन लेने से एडिक्शन हो जाएगा। मॉर्फिन, डॉक्टर्स को लगता है कि मॉर्फिन लेने से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, हम सांस लेना बंद कर देंगे। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को पेन सफर करना पड़ता है, हम उसको इतना अंडर ट्रीट करते हैं उस पेन के लिए, और उसकी वजह से वो पूरा टाइम सफर करता है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से अच्छी होगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रेन पैलेटिव फिजिशियन अगर इसको ट्रीट करे, उनको पता है मॉर्फिन कैसे यूज करनी है। और आप डिफरेंस देखेंगे, एक जनरल जीपी अगर मॉर्फिन दे रहा है और एक पैलेटिव वाला दे रहा है। मेरे पास आज ही एक प्रिस्क्रिप्शन आया, अहमदाबाद से ही आया, उसमें मतलब सब कुछ था, लेकिन फिर भी पेशेंट को पेन कंट्रोल नहीं है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि इसके लिए हम क्या करें। अब मैं यहाँ बैठ के, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आधी गोली मॉर्फिन सुबह और आधी गोली शाम को, ये कोई डोज ही नहीं है गोली का मॉर्फिन का। क्योंकि मॉर्फिन हमेशा 4-4 घंटे में देनी चाहिए, अगर हम रेगुलरली दे रहे हैं तो रेगुलर डोज, इमीडिएट रिलीज वाला। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बट पेशेंट ना अननेसेसरी सफर करता है, क्योंकि मॉर्फिन के लिए बहुत सारी चीजें हैं पेशेंट्स के दिमाग में, रिलेटिव्स के दिमाग में और डॉक्टर्स के दिमाग में। सो बहुत अंडर ट्रीट होता है हमारे यहाँ का पेशेंट, एटलीस्ट पेन के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये होता है कि ये जो है, हम ये केयर कहाँ मिल सकती है, क्योंकि पैलिएटिव केयर जब आता है तो लोग सीधा उसको हॉस्पिस से जोड़ देते हैं। अब हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर बहुत अलग चीज है। पैलिएटिव केयर आपको हॉस्पिटल, घर, हॉस्पिस सब जगह मिलती है, तो इसलिए उसको उस चीज से भी इक्वेट नहीं करने का, क्योंकि एक इतना बड़ा इस शब्द के साथ जुड़ गया है ना वो एक डर कि ये मतलब सब कुछ खत्म ही है अगर ये शब्द आ गया तो। पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पहले दिन डायग्नोसिस के साथ ये शब्द भी जुड़ा हो तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट होने वाले लाइफ में आगे उस पेशेंट के, अगर उसको पहले दिन से रिफर कर दिया जाए तो। नेक्स्ट प्लीज। सो सबसे पहले हम आते हैं ये वाला, कि पैलिएटिव केयर उन लोगों के लिए है जिनके लिए अब कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा और जो एंड ऑफ लाइफ है। ये एक स्पेक्ट्रम है पूरा पैलिएटिव केयर का। ये सिर्फ एंड ऑफ लाइफ पेशेंट के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है, पर सिर्फ उनके लिए नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो जब भी कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है किसी भी पेशेंट का, चाहे वो सर्जरी हुई हो, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे रेडियोथेरेपी है, उस चीज से जो भी सिम्टम्स आते हैं उसका ट्रीटमेंट करता है पैलिएटिव मेडिसिन कंसल्टेंट। जैसे अगर रेडियोथेरेपी हुई ओरल कैंसर में, सीवियर म्यूकोसाइटिस है, वो सीवियर म्यूकोसाइटिस का पेन इतना सीवियर होता है कि वो हर कोई नहीं ट्रीट कर सकता। तो हम लोग मॉर्फिन से लेके बाकी सब ट्रीट तो करते ही हैं, लेजर तक देते हैं उसके लिए लो लेवल, और वो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। उसके अलावा मॉर्फिन गागल्स है, उसके अलावा कीटामिन गागल्स है, मतलब बहुत सारी चीजें यूज होती है जिससे वो थोड़ा उसका पेन कम हो और आप आपका ट्रीटमेंट चालू रख पाए। बेसिकली उसके पीछे एम ये है, ये सब सिम्टम ट्रीट करने का, कि कॉम्प्लायंस बढ़ता है पेशेंट का, नहीं तो लोग छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड डायरिया होता है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग होती है। अब वो हमें पता है कि वो नॉर्मल आप एमसेट और आप क्या दे देते हो मेटाक्लोप्रोमाइड से कई बार ये ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक कीमो ड्रग्स के साथ रहता है। तो हमें पता होता है कि अगर ये वाली ड्रग इस पेशेंट को दी है तो इसकी उल्टी इसकी इस ड्रग से ठीक हो सकती है, ना कि ये दो कॉमन ड्रग जो हर कोई लिख देता है। तो इस इसका बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे गार्गल्स का भी है, एक ऐसे एमटोर इनहिबिटर्स करके यूज होते हैं कीमोथेरेपी, उसका म्यूकोसाइटिस आपको स्टेरॉइड गागल से ही ठीक होगा और किसी से होगा ही नहीं। तो ये बात हमें पता होती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट अगर इन सब साइड इफेक्ट्स के साथ भी है तो उसको पैलेटिव के पास भेज दिया जाए, ताकि वो प्रॉपरली उसको ट्रीट करके आपको वापस दे पाए पेशेंट, ताकि फिर से उसका ट्रीटमेंट चालू हो सके और उसका एक अच्छा रिजल्ट आ पाए। बीच में छोड़ दिया, डिले हो गया, 2 महीना नहीं गया पेशेंट, क्योंकि उसको इतना सारा साइड इफेक्ट आ रहा है, तो वो सफर करेगा और फिर ठीक होने के चांसेस कम होते जाते हैं जैसे जैसा गैप आता है ट्रीटमेंट में।
तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शुरू दिन से अगर पेशेंट रेफर होता है तो उसका रिजल्ट, उसका सर्वाइवल, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी सफरिंग सब कुछ अच्छी रहती है इस तरीके से। नेक्स्ट प्लीज। ये सबसे पहले जब एक स्टडी हुई थी लंग कैंसर में की थी, पैलेटिव और नॉन पैलेटिव, उन्होंने एक ग्रुप को पैलेटिव के पास भेजा था और एक को नहीं भेजा था। तो जिसको भेजा था उसका सर्वाइवल ज्यादा आया। ये हमारा बहुत ही लैंडमार्क स्टडी हुई थी उस टाइम पे, इसलिए वो मेरा किसी और ग्रुप के लिए था, तो इसलिए उनके लिए था ये। नेक्स्ट प्लीज। सो द फैक्ट इज, हमने मिथ्स देख लिए। फैक्ट ये है कि किसी भी स्टेज के इलनेस की किसी भी स्टेज पे पैलेटिव को रिफर किया जा सकता है, और ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है केयर गिवर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। क्योंकि जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो आपका डिजीज देख रहा है और वो आपका डिजीज ट्रीट कर रहा है। पर जब पैलेटिव भी इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, तो वो सिर्फ डिजीज ही नहीं, आपको एज अ पर्सन ट्रीट करता है। एज एज अ पर्सन वो आपकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करता है उसके अंदर। उसकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका जो साइको सोशल सपोर्ट है वो आपको मिलता है। और कई बार स्पिरिचुअल नीड्स और इमोशनल नीड्स भी पूरी करनी होती है, क्योंकि ये सिम्टम जैसे पेन है, पेन इतना ज्यादा होता है इन पेशेंट्स को, बट कई बार हम देखते हैं कि सिर्फ पेन किलर से ठीक नहीं होता है। तो जब हम इसको साइको सोशली पूरा ट्रीट करते हैं, जैसे मैं एंटी डिप्रेशन देना पड़ता है, कई बार साइकोथेरेपी करनी पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट आके बात करते हैं, तो उस टाइम पे जाके ऐसा लगता है कि ठीक है अब इसका पेन थोड़ा सा कम हो रहा है और हमारी दवाइयां एक्ट करना शुरू करती है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, खाली दर्द की दवा देने से दर्द नहीं चला जाता है इन मरीजों का एटलीस्ट। और इसलिए जितनी जल्दी इसको हम चालू करते हैं, उतनी जल्दी ये इलनेस की और ये ट्रीटमेंट की जर्नी है वो इजीली पूरी कर पाते हैं। सफरिंग तो रहती है बट फिर भी हम उसको कम कर पाते हैं और इसलिए वो ट्रीटमेंट पूरा कर पाते हैं। सो इसलिए कहते हैं पैलिएटिव केयर इज टू कीप लिविंग फॉर एज लॉन्ग एज एंड एज वेल एज पॉसिबल। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा आता है कि पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर सेम है। ये बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि हॉस्पिस केयर का सर्टेन क्राइटेरिया एडमिशंस का हमारे वहाँ तो नहीं होता। यूएस का है कि 6 महीने की ही लाइफ होनी चाहिए पेशेंट की, उससे कम वालों को ही वो लेते हैं, उससे ज्यादा वालों को नहीं लेते। आई थिंक वो अभी चेंज हो गया उनका भी, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिस केयर में हम तो क्या, एक रिस्पाइट केयर भी होता है। जैसे किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है और सपोज केयर गिवर्स को कहीं जाना है, तो वो 5 दिन 10 दिन के लिए वो हमारे हॉस्पिस में रख के जा सकता है। ठीक है, तो हम उसकी उस टाइम पे केयर कर लेंगे। तो ये रिस्पाइट केयर है, ये केयर गिवर्स के लिए है कि वो भी बर्नआउट होते हैं, उनको भी थोड़े दिन, अगर वो 4-5 दिन बाहर निकल जाए, कोई शादी अटेंड कर ले, क्योंकि कंटिन्यूस केयर गिविंग देना भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, ये बहुत बड़ा बर्डन होता है फैमिलीज पे भी कई बार, क्योंकि वो भी उसी पेन से गुजर रहे होते हैं जिस पेन से वो पेशेंट गुजर रहा है। तो उनको अगर हम 4-5 दिन के लिए रिस्पाइट दे दें, तो हमारे यहाँ तो हॉस्पिस हम इसके लिए भी यूज करते हैं। बट हॉस्पिस में यूजुअली क्या होता है, कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता। पैलिएटिव केयर में और हॉस्पिटल में, घर में ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के साथ चलता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर पेशेंट हॉस्पिस गया है मतलब कोई उसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, सब उसका बंद हो चुका है और बेसिकली अब सिम्टम मैनेजमेंट पे है। बट अगर रिस्पाइट केयर पे है तो वो विद ट्रीटमेंट भी जाता है। अब हमारे यहाँ तो जिस एरिया में तो क्या होता था, मैं तो अगर कोई बाहर से आया है, उसको रहने की जगह नहीं है, उसका रेडियोथेरेपी चल रहा है, उसको 28 दिन जाना है हॉस्पिटल, तो कहाँ रहेगा, गरीब है, तो मैं तो तब भी हॉस्पिस भेज देती थी। तो इसलिए हमारे इंडिया में हम बहुत उसको स्ट्रिक्ट नहीं रखते हैं, और रखना भी नहीं चाहिए। क्यों रखना चाहिए इतना स्ट्रिक्ट डिफरेंशिएशन? अल्टीमेटली पेशेंट को हेल्प करनी है और उनके केयर गिवर्स को हमें हेल्प करनी है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये पैलिएटिव केयर एक पूरा इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, और इसमें हॉस्पिस एक छोटी सी चीज होती है, और ऐसी एंड ऑफ लाइफ केयर भी इसमें एक छोटी सी चीज है। दोनों तीनों बिल्कुल भी एक दूसरे को का मतलब नहीं है, सिनोनिमस नहीं है ये। ठीक है, ये हॉस्पिस पूरा पैलिएटिव हो सकता है, बट पूरा पैलिएटिव केयर इज नॉट हॉस्पिस केयर। नेक्स्ट प्लीज। और ये देखो, अब ये बड़ा पूरा स्पेक्ट्रम है। क्यूर जब डायग्नोसिस होता है तब क्यूरेटिव केयर फुल 100% होता है। ठीक है, धीरे धीरे अगर नहीं कुछ हो रहा है, धीरे धीरे पैलिएटिव का पार्ट बढ़ता जाता है, क्यूरेटिव कम होता है। अब इसमें एंड ऑफ लाइफ केयर बिल्कुल एंड में एक छोटा स्पेक्ट्रम है जो इस पूरे पैलिएटिव का पार्ट है। और पैलिएटिव खाली पेशेंट के डेथ के साथ खत्म नहीं हो जाता, वो बेरियवमेंट का भी बेसिकली 1 साल तक चलता है बाद में भी।
आइडियली फॉलो करना चाहिए रिलेटिव्स को उसके बाद भी, कि वो कैसे हैं, वो कैसे कोप कर रहे हैं, उनका ग्रीफ मैकेनिज्म क्या है, वो सब एक अलग टॉपिक होता है। बट ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है पैलिएटिव का, फ्रॉम डायग्नोसिस टू बेरीवेमेंट। नेक्स्ट प्लीज। हमने ये देखा कि एंड ऑफ लाइफ केयर और हॉस्पिस केयर पैलिएटिव केयर जैसा सेम नहीं है। पैलिएटिव हम किसी भी एज में और किसी भी स्टेज में दे सकते हैं, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के साथ ये चलता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनल पेशेंट्स को भी देते हैं ये, क्योंकि कई बार जैसे अगर कैंसर नहीं है, दूसरा कोई डिजीज है लाइक सीओपीडी है, या किडनी का है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो ये पेशेंट्स को क्या बार बार सिम्टम्स आते रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत नियर फ्यूचर में उनकी डेथ होने वाली है। तो इन सिम्टम का ट्रीटमेंट करते रहते हैं और लॉन्ग टर्म ये पेशेंट चलते रहते हैं। तो इसलिए इसका ये मतलब भी नहीं है कि पैलिएटिव सिर्फ एंड ऑफ लाइफ है, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। So many patients with serious illness, even when they are not in terminal phase, उनको इतना साइकोसोशल प्रॉब्लम होता है, तो उससे भी पैलिएटिव से उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि पैलिएटिव केयर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। इसमें इसमें साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, पोडियाट्रिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये सब मिलके काम करते हैं तो पेशेंट को इम्प्रूव होना लाजमी है उसके बाद तो। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि कैंसर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम हर जगह कैंसर कैंसर लिखते हैं, बट ये नॉन कैंसर के लिए बहुत सारा, जैसे एड्स है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, बच्चों में ऑटिज्म है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स है बच्चे। जो भी डिसीज आपको मतलब होता है जो लाइफ लिमिटिंग है, आपको पता है कि इसका क्योर नहीं है, वो किसी में भी दे सकते हैं इसको। और एक्चुअली डायग्नोसिस बेस्ड नहीं है पैलिएटिव केयर, दिस इज नीड बेस्ड। ठीक है, अगर पेशेंट को जरूरत है, कोई भी बीमारी है, तो भी हम उसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको डायग्नोसिस बेस्ड नहीं रखना चाहिए, इट इज अ नीड बेस्ड एक्चुअली। नेक्स्ट प्लीज। अब ये सिम्टम बर्डन है मैंने दिखाया, ये सारे नॉन कैंसर पेशेंट्स के सिम्टम बर्डन देखिए कितना ज्यादा सिम्टम्स होते हैं उनको भी। अब पेन है, ब्रेथलेसनेस है, फटीग है, भूख नहीं लगना है, उल्टियां हैं, कॉन्स्टिपेशन है, एंजाइटी है, ये सब इतना ज्यादा हाई बर्डन है। देखिए 70-80% पे जा रहा है इन सब पेशेंट्स में भी। तो ये सिम्टम तो हम कैंसर में भी ट्रीट करते हैं, तो बाकी नॉन कैंसर में क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसलिए इसको इक्वेट करना कि सिर्फ कैंसर है, कैंसर के लिए ही है, ये बहुत गलत बात है। ये इक्वेट इसलिए हो गया क्योंकि कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा हमें दिखते हैं, और सारी स्टेजेस एक्चुअली कैंसर पे ही होती है पैलिएटिव की, तो इसीलिए उसको बहुत हाईलाइट हो गया है। बट हम इसको कितने सारे डिजीज में जहाँ पे इतना सब सिम्टम बर्डन है, हम वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, फिर अब एक ये बात भी होती है कि लोगों को लगता है कि अगर अब पैलिएटिव को दे दिया तो अब मेडिकल ऑन्कोलॉजी से हमारा कोई नाता नहीं बचेगा ना, वो हमें आके देखेगा। और हमेशा पेशेंट्स को ये एक क्यूरियोसिटी रहती है कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, उनको बार बार अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना होता है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी दो पेशेंट जो जिनकी कीमो चल रही थी, जो बहुत सीवियरली सिक हो गए, 2-3 महीना उन्होंने हमको दे दिया था, उन्होंने तो उसको डीएनआर भी कर दिया था। 2-3 महीना उनको हमने ट्रीट किया अपने पैलेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से, पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस इंप्रूव हुआ, और मैंने अभी वो दोनों पेशेंट वापस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दे दिए कि अगर अब वो कुछ कर पाए तो उसमें कुछ नहीं तो पैलेटिव कीमोथेरेपी, पैलेटिव रेडियोथेरेपी जो भी है, कि कुछ दिन और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिम्टम कम हो जाए, और कुछ दिन और सर्वाइवल अच्छी लाइफ के साथ हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमें दे दिया तो बस हो गया, सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक टीम अप्रोच होता है। कई बार कुछ चीजें होती है जो हम ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं और ट्रीट कर पाते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि पैलिएटिव को और उनकी पूरी टीम को इन्वॉल्व किया जाए। हम किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी साथ में रहते ही हैं। और जरूरत पड़ने पे, जैसे मैंने बताया, मैंने दो पेशेंट अभी वापस दिए कि इनका वापस ट्रीटमेंट चालू करो। मेरे हिसाब से उनका परफॉर्मेंस स्टेटस इंप्रूव हो गया था, उनका पेन खत्म हो गया था, वो घूमने फिरने लगे थे, खाना खाने लगे थे। तो और क्या चाहिए होता है? बस अगर यही चीजें जाती हैं तो वो लोग बंद कर देते हैं, वापस आ गई। तो अब वो उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की मीटिंग होती है, सारे लोग बैठते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि इनका अब क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए।
तो इसलिए बताने का मुद्दा ये है कि बेसिकली हम ले लेते हैं वापस, ऐसा नहीं है। पेशेंट अगर ठीक हो जाते हैं, इम्प्रूव होते हैं, तो वापस ट्रीटमेंट चालू हो सकता है इसमें भी। नेक्स्ट प्लीज। ये एक्चुअली बहुत एथिकल क्वेश्चंस होते हैं ये। किसी दिन अगर मैं एथिक्स इन पैलिएटिव केयर पे बात करूंगी तो शायद उस दिन मैं बताऊंगी। अभी इसके साथ इसका ये मिथ वाला हमारा कोई वो नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, दूसरा मत है मॉर्फिन पे। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि लोग मॉर्फिन को सही तरीके से समझे और उसको सही तरीके से यूज करें, क्योंकि ये इतनी अच्छी ड्रग है इन पेशेंट्स के लिए, जिससे एक्चुअली में उनका पेन जब कम हो जाता है ना तो उनका मूड ठीक हो जाता है, वो खाना खाने लगते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है धीरे धीरे। बस कि पेन रिलीफ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और उसके लिए मॉर्फिन से अच्छी कोई दवा नहीं है अभी इस टाइम में पेशेंट्स के लिए। और इसलिए जब लोग कहते हैं कि नहीं देते नहीं है, दर्द सहने देते हैं अपने पेशेंट को क्योंकि उनको लगता है ये एडिक्शन हो जाएगा, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे आप सब लोगों को कि अगर एक्चुअल में कैंसर है और एक्चुअल में कैंसर पेन है तो मॉर्फिन कभी भी एडिक्शन नहीं करेगी। अगर मैं लूंगी, आप लेंगे, तो हम तुरंत एडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको उस प्लेजर के लिए ले रहे हैं, हम उस पेन के लिए नहीं ले रहे हैं। बट ये पेशेंट को पेन के लिए लेते हैं, उनका पेन जाता है, तो इससे एडिक्शन नहीं होता है। जब इनका कैंसर ठीक हो जाता है तब तब थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि तब तक वो उस चीज को एडिक्ट हो चुके होते हैं। पर फिर भी धीरे धीरे करके डोज कम करके उसको हम बंद कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि फिर मॉर्फिन बंद करनी पड़ जाती है अगर डिजीज ठीक हो जाती है तो। पर तब भी वो उतना मुश्किल नहीं है। बट जब है डिजीज और इतना सीवियर पेन है तो उस टाइम पे तो मॉर्फिन को कभी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो मॉर्फिन के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम रहती है? एक तो पेशेंट बहुत सोएगा, बात नहीं करेगा, खाना पीना बंद कर देगा। दूसरा, डॉक्टर्स को लगता है कि टॉलरेंस हो जाएगी। मॉर्फिन से टॉलरेंस नहीं होती है। सोना भी शुरू के 2-3 दिन वो सोते हैं, उसके बाद वो नहीं सोते हैं अगर उनको प्रॉपर डोज जा रहा है तो। इसको टॉलरेंस नहीं आती है क्योंकि इनका कोई मिनिमम मैक्सिमम डोज ही नहीं होता है। ठीक है। और अगर पेन है तो डॉक्टर्स को लगता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, इसलिए वो इतना वो ना गुटके टाइप की देते हैं दवा, ना होम्योपैथी की डोजेस देते हैं पेशेंट्स को। पर इससे अगर एक्चुअल में कैंसर पेन है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके उसको कोई ऐसा डोज दे दो। ठीक है। एडिक्शन की बात मैंने कर ली कि एडिक्शन नहीं होता है। एक्चुअली ये सूडो एडिक्शन डॉक्टर्स की तरफ से दिखता है कि वो पेशेंट बोलता है पेन पेन है और डॉक्टर्स बढ़ाना ही नहीं चाहते और कहते हैं कि नहीं ये तो एडिक्ट हो गया। ठीक है। लैक ऑफ इफेक्ट इसका होता है उस केस में 2-3 सिनारियोज होते हैं जब होता है तो एक्चुअली एंजाइमेटिक लेवल पे होता है, मेटाबॉलिज्म लेवल पे होता है, और कई बार डिजीज प्रोग्रेशन की वजह से भी होता है, तो तब डोज बढ़ाना पड़ता है। और अगर और किसी वजह से हो रहा है तो हम सिंपली उसको रोटेट कर देते हैं, एक टाइप का ओपियोइड की जगह दूसरा कर दिया। ठीक है। और कई बार लोगों को लगता है कि मॉर्फिन देने से ऐसा है कि बस अब तो अंत करीब है, ऐसा भी नहीं है। पहले दिन से कई बार अगर पेन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो सीधा मॉर्फिन भी चालू कर सकते हैं। कई बार वो WHO एनालिसिस लेटर है जिसमें बताया है कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, तो उसमें भी हम कई बार सीधा मॉर्फिन से चालू कर देते हैं, डिपेंडिंग उसका पेन इंटेंसिटी कैसी है, क्योंकि बेसिकली हमारा एम है कि उसकी सफरिंग कम हो किसी भी तरीके से। और उसके लिए जो सही होता है उसी उसी पैटर्न के हिसाब से मॉर्फिन चालू होती है। ठीक है। और जिसमें शॉर्टन लाइफ ये कुछ लोगों को लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और एक्चुअली इससे ना तो एसिडिटी होती है, ना इसका किडनी पे कोई असर होता है। और जो बहुत सीवियर डिजीज हो जाए तब लिवर में जाके कुछ होता है तब हम बंद करते हैं इसको, अदरवाइज थोड़ा बहुत में तो हर किसी में चलता है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है दूसरे ऑर्गन्स पे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये क्योंकि कई बार बहुत पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि आप बहुत ज्यादा मॉर्फिन दे रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि इससे सांस बंद हो जाएगी या आप उसको बहुत सुला दोगे। तो बट ऐसा होता नहीं है। ये डॉक्टर ने डबल इफेक्ट है कि एक अगर एक इफेक्ट लाने के लिए दूसरा थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आता है तो उसको सहन कर लेना चाहिए, और वो लीगली और एथिकली परमिसिबल है। जैसे मॉर्फिन देने से कॉन्स्टिपेशन सीवियर होगा, ये पता है हमको, तो ये एक खराब इफेक्ट है। बट मॉर्फिन से उसका पेन रिलीफ का जो इफेक्ट आएगा वो कॉन्स्टिपेशन हम मैनेज कर लेंगे। कुछ भी दे देंगे उसको, 2 दवाई देंगे, 3 देंगे, नहीं होता है तो हर दूसरे दिन अनीमा दे देते हैं, बट कॉन्स्टिपेशन मैनेज कर लेते हैं क्योंकि वो एक है उसका साइड इफेक्ट।
बट वो साइड इफेक्ट मैनेजेबल है और कम है एज कम्पेयर टू जो बेनिफिशियल इफेक्ट मॉर्फिन देने वाली है। तो इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। सो की लर्निंग पॉइंट यहाँ पे यही है कि जब पेशेंट बहुत सीवियर पेन में होता है, चाहे वो क्रॉनिक पेन ही हो, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कैंसर पेन या एक्यूट पेन की बात कर रही हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आ, इसका भी पेन बहुत सीवियर होता है। तो कई बार जब ये मॉर्फिन दी जाती है या दवाइयाँ दी जाती है तो उनका वेलबींग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो और इससे उनकी सफरिंग कम होती है। इसीलिए ये जरूरी है कि इस टाइम पे पेन या पैलिएटिव फिजिशियन को रिफर किया जाए पेशेंट। ठीक है, और एडिक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। और दूसरी बात मॉर्फिन की जो मैं सबको बताना चाहूंगी, मॉर्फिन का कोई मिलीग्राम पर केजी डोज नहीं है, जैसे 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम या इतना ही मैक्सिमम है, मैं 100 से ज्यादा नहीं दे सकती। इसका ना कोई लो डोज है ना हाई डोज है। जो डोज पे पेशेंट को पेन रिलीफ है वो उसके लिए फिक्स डोज है। ठीक है, उससे वो आगे टाइट्रेट होगा और किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, 60 मिलीग्राम से लेके तो मैंने 3000 मिलीग्राम तक के पेशेंट भी देखे हैं। तो इसलिए इसका कोई डरने की जरूरत नहीं है कि अरे 200 मिलीग्राम ले रहा है, 300 ले रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की इतनी जरूरत है इसलिए वो ले रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि अरे 50 ही देना चाहिए या 100 ही देना चाहिए और 25। और हमारे तो इंडिया में अभी 10 मिलीग्राम हाफ टैबलेट BID, मतलब सोचो 5-5 मिलीग्राम दे रहे हैं, जबकि 5 मिलीग्राम से तो कुछ भी नहीं होता है। और फिर ये सिर्फ 4 घंटे ही एक्ट करता है। तो एवरी 4 आवर्स नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो रिपीट करना ही पड़ता है। तो अगर जो सुबह शाम दे रहे हैं, अगर वो लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट नहीं दे रहे हैं तो कोई काम की नहीं है, और अगर लॉन्ग एक्टिंग देते हैं तो उसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो हाफ टैबलेट कभी नहीं होगी, उसको तोड़ा ही नहीं जाता है लॉन्ग एक्टिंग को, सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग को तोड़ा जाता है। और अगर शॉर्ट एक्टिंग दे रहे हैं तो हर 4 घंटे में रिपीट होती है। तो और ये बहुत बेसिक चीज है जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए पेन रिलीफ नहीं आता है। नेक्स्ट प्लीज। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन मॉर्फिन के लिए बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे भी जब भी मॉर्फिन फैंटेनिल जो भी स्टार्ट करते हैं, हम उनको ये सब कुछ बताते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उससे उनको क्या क्या इफेक्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन होने वाला है, उसको हम ट्रीट करेंगे, उसका डोज ये है, हर 4 घंटे में है, उसको ब्रेक थ्रू हम देते हैं, मतलब बीच में कभी भी दर्द हो तो एक्स्ट्रा डोजेस लेना है, कितने लेना है, रेगुलर कैसे चलने देना है। तो ये भी बहुत जरूरी है इस मॉर्फिन रिलेटेड मिथ्स को खत्म करने के लिए, कि हम पेशेंट को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको बताना जरूरी है। जब हम बता देते हैं और केयर गिवर्स को भी बता देते हैं तो कॉम्प्लायंस बहुत बढ़ जाता है। और देखिए अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि वो दवा ले, वो पेन फ्री रहे, अपना मूड ठीक रखें, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करे, घूमे फिरे और अपनी थेरेपी कंटिन्यू रखे। मेन एम तो वही होता है कि उनका जो भी चल रहा है, कीमो रेडियो जो भी है वो कंटिन्यू रखे, कम से कम सफरिंग के साथ। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये एक्स्ट्रा लेयर होती है केयर की, हम कोई मेन केयर गिवर नहीं हो जाते, ये कोलैबोरेशन होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ और बाकी हमारी पूरी टीम के साथ। और अगर पेशेंट को हम घर पे भी दे रहे हैं तो घर में भी हमारे यहाँ तो कम्युनिटी नर्सिंग बहुत डेवलप्ड है, तो वहाँ पे हम नर्सेज इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम होम केयर में जाते थे, मैं जाती थी तो मैं पेन के लिए कई बार ब्लॉक घर पे लगा देती थी। कई बार अगर बहुत ज्यादा एसाइटिस है, पेट में पानी भर गया है, तो हम घर पे ही निकाल देते थे। जैसे आप 1 लीटर भी निकालोगे, थोड़ा पेशेंट को पेट अंदर हुआ, वो इतना रिलीफ उसको महसूस होता है। तो ये सब सफरिंग कम करने का ही तरीका है और ये हम कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है पेशेंट को, ये घर में भी हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। मेन एम है पेशेंट की सफरिंग कम करना, और हमारे गोल्स ऑफ केयर उसको हम पहले से ही समझा देनी चाहिए कि हम ये प्लान कर रहे हैं आपके लिए। तो सब कुछ आसान हो जाता है, उतना मुश्किल नहीं होता है समझाना लोगों को। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मैंने बता दिया कि ये होप तो हम कभी भी नहीं छोड़ते। देखिए पेशेंट को हम होप दे भी नहीं सकते, हम उनसे ले भी नहीं सकते। तो जहां तक जरूरी हो, ये एक एक्टिव ट्रीटमेंट होता है पैलिएटिव केयर का भी। अब हाई लेवल क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है, ट्रीटमेंट तो फिर भी चलता ही रहता है, एक अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है, बट ट्रीटमेंट चालू रहता है। तो ये अबेंडनमेंट की फीलिंग जो पेशेंट को आती है उसके बाद वो नहीं आनी चाहिए। अगर उन्हें पता है कि उनका वो जो
ट्रीटमेंट है वो बंद नहीं हुआ है। देखिए कुछ भी हो, अगर हम डीएनआर भी करते हैं पेशेंट को तो हम बोलते हैं कि ठीक है वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे, इस ये नहीं करेंगे, बट जरूरत होती है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, ब्लड देते हैं, प्लेटलेट्स देते हैं, तो बाकी सब तो चलता ही रहता है, बाकी कुछ बंद नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को छोड़ दिया, अगर पैलेटिव में डाल दिया तो कि ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता आप घर जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, कई बार ये सब देने के बाद पेशेंट अगर इम्प्रूव होता है तो वापस ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकता है। तो इसलिए ये सब चीजें और ये होप जो होती है, ये सब कभी भी हम किसी की खत्म नहीं करते हैं इन केसेस में। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं कम्युनिकेशन का पहले बोल चुकी हूँ कि बेसिकली कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है पेशेंट्स के साथ, क्योंकि जैसे ये डायग्नोसिस होता है सबको वही दिखता है कि बस एंड वही होता है, कैंसर का नाम लो और हम खुद भी डर जाएंगे, हमें वही लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा हमारी जिंदगी में। तो ये जो चीजें हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है पेशेंट का, इसको ठीक करने के लिए कंटिन्यूस कम्युनिकेशन जो एक पैलेटिव वाले करते हैं वो और किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी वो ट्रेनिंग नहीं होती है। और ये बहुत ही ट्रीटेबल स्किल्स है। अब इसके ऊपर ना चैप्टर्स है हमारे पास हमारी मेडिसिन के बुक में कि कैसे पेशेंट को ये कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो वो इस फेज से बाहर आए और वो वापस लड़ने के लिए तैयार रहे जब उसका डायग्नोसिस बने तब। जो वो डिप्रेशन होता है, जो जो डिस्पेयर आता है इस डिजीज के साथ, वो बहुत ही खराब होता है। तो उसको उस फेज से बाहर लाना और उसको वापस से तैयार करना अपने ट्रीटमेंट के लिए, ये सब कुछ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बीच। मतलब मैं यहाँ पे हर दिन कम से कम 2 काउंसलिंग करती हूँ पेशेंट्स की या रिलेटिव्स की। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी होती है उन लोग को भी समझाना और पेशेंट को भी समझाना कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए और आगे हमें क्या एक्सपेक्ट करना है और क्या क्या हो सकता है। तो वो एक जब क्लियर पिक्चर होता है तो वो भी फुल हार्टेडली इस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये तो हम वापस कर ही मैं आपको बता ही चुकी कि बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ही ये सारी जद्दोजहद है। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो अभी मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये 3 लेवल पे बेसिकली होती है पैलिएटिव केयर अप्रोच। ये मैंने यहाँ पे स्टाफ लिखा है, बट हमारे यहाँ पे ग्रुप में अगर कोई वॉलेंटियर्स है, कोई भी है, तो ये कोई भी कर सकता है। जैसे आप लोग को पता है कि किस पेशेंट को पैलिएटिव से फायदा हो सकता है, तो ये आप लोग भी रिफर कर सकते हो पेशेंट को आप, और आप खुद भी कर सकते हो। पैलिएटिव केयर में कोई बहुत वैसा नहीं है इस लेवल पे। बहुत लोगों को पता होता है कि क्या करना है, कैसे समझाना है। फिर आता है जनरल पैलिएटिव केयर जहाँ पे लोगों के पास ट्रेनिंग है इसमें, जैसे नर्सेज है उनके पास ट्रेनिंग है, या जो छोटे 1 महीना 1.5 महीना वाला कोर्सेज भी होता है उसके थ्रू भी जनरल पैलिएटिव केयर कर सकते हैं। तीसरा आता है फिर स्पेशलिस्ट, जो हम बड़े हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिस में होता है या होम केयर टीम्स करती है। तो इतने 3 लेवल पे मुझे लगता है हर कोई अपने हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि स्पेशलिस्ट होना ही जरूरी है या किसी के पास ट्रेनिंग होनी ही जरूरी है। जो भी लोग इसको एक्सपोज हुए हैं, इस वर्ड को एक्सपोज हुए हैं, जैसे आप लोग का ग्रुप है, हर कोई इसमें पार्ट ले सकता है। और अल्टीमेटली देखिए एम है पेशेंट को हेल्प करना और उसके केयर गिवर्स को हेल्प करना। वो हर कोई अपने लेवल पे करता है, जिसको भी ये बात पता है। नेक्स्ट प्लीज। और इसीलिए ये भी एक ये जरूरी है कि आपको पता हो कि कब पेशेंट को पैलिएटिव के लिए रिफर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही हमेशा रिफर करे। एक तो पेशेंट का राइट है, अगर उसे पता है कि इस तरह की कोई चीज है तो वो खुद भी बोल सकता है कि मुझे पैलिएटिव को रिफर करो मेरे सिम्टम मैनेजमेंट के लिए, ये उसका हक है और वो बोल सकता है। इसके अलावा जैसे आप लोग भी हैं, अगर किसी को भी इन किसी भी चीजों के टाइम पे पेशेंट दिखता है तब भी वो भेज सकते हैं पेशेंट को। जैसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कोई कोई भी थेरेपी के, ठीक है, कोई स्कैन हुआ है या कोई डिसीजन मेकिंग का पॉइंट आया है। जब मैं आप लोग के ग्रुप में देखती थी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि अब ये हुआ है तो अब क्या करना चाहिए, ये हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो इस तरह के कोई भी डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स होते हैं उस टाइम पे आप रिफर कर सकते हो। मेटास्टेटिक है तो कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सारी जगह पे है जहाँ आप लोग पेशेंट को बता सकते हो, उसके अवेयरनेस ला सकते हो उसको भी कि ये सब चीजें भी हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो टेक अवे मैसेजेस। पैलिएटिव केयर
जैसी है उस हालात को अच्छा रखने की कोशिश करता है। ना तो खराब करता है ना पोस्टपोन करता है, जो भी अल्टीमेटली लाइफ में होना है। अगर क्योर हो जाते हैं तो भी कई बार बाद में पैलिएटिव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेन चलता रहता है, वो धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे उसको हमको ओपियोइड उसका कम करना पड़ता है। तो ठीक भी हो जाता है पेशेंट, तब भी उसके बाद भी पैलिएटिव का रोल चलता रहता है। ठीक है, किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप को दे सकते हैं। ठीक है, और एडिक्शन नहीं होता है मॉर्फिन का, ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है आज, जो सब यहाँ से एटलीस्ट कुछ लोग तो लेके जाएंगे। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा अगर कैंसर पेशेंट सीवियर पेन में है और अगर हम उसको दे रहे हैं तो। ठीक है, और पैलिएटिव केयर इज अबाउट लाइफ, नॉट एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, जो भी जिंदगी है उसको अच्छे से रोज के रोज जिए, यही पैलिएटिव मेडिसिन का एम होता है, ना कि एंड ऑफ लाइफ पे। एंड वी नेवर गिव अप ऑन एनी पेशेंट, हम सिम्टम्स का एक्टिव ट्रीटमेंट चालू ही रखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और काउंसलिंग इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट हमारा पैलिएटिव केयर का, वो बहुत बड़ा पार्ट होता है। और एक और मिथ जो है, एंड ऑफ लाइफ केयर है पैलिएटिव केयर, वो भी गलत है, वो सिर्फ एक एंड का स्पेक्ट्रम है इस पूरे टोटल पैलिएटिव केयर। नेक्स्ट। जैसे अब देखिए, ये पेशेंट था हमारा, एक जीसीआरआई में आया था, ये बच्चा है 15 साल का, ये ऑस्टियोसार्कोमा था। ठीक है, इसको तो सीधा देख के उन्होंने पैलिएटिव में भेज दिया। ये पैर में बड़ा सा घाव था, इसमें मैगेट्स थे। इमेजिन करो इस बच्चे को, इस ये हिला भी नहीं सकता था, ये इतना भारी इतना बड़ा ट्यूमर था। तो अभी हमने क्या किया, इसको मैं पीछे पड़ी, मुझे बहुत मेहनत लगी, अल्टीमेटली इसको मैंने एम्पुटेट करा दिया, क्योंकि जितनी भी लाइफ हो एटलीस्ट वो अच्छे से जिए। अभी देखो, पहली बार ऐसा है, वो बच्चा हंस रहा था जब मैं उसको नेक्स्ट टाइम मिली, अपना पैर कटवा के भी वो इतना खुश था। तो ये पैलेटिव है, जहाँ पे बेसिकली उस बच्चे की सफरिंग हमने कम करी, चाहे हमें ये करना पड़ा, बट उसके बाद भी वो खुश था, वो घूम फिर रहा था, उसका वो पेन खत्म हो गया, वो मैगट्स हीमोग्लोबिन 3 के साथ आया था। तो इस तरह से हमने इसकी हेल्प करी, तो ये भी एक सिम्टम ट्रीटमेंट था, ताकि उसकी लाइफ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। नेक्स्ट प्लीज। सो ये कोट के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी, आवर फियर्स डू नॉट प्रिवेंट डेथ, दे स्टॉप लाइफ, लिविंग इन द प्रेजेंट इज लिविंग इन लव, नॉट इन फियर, दिस इज आवर गोल, लिव इन लव। एलिजाबेथ कुबलर रॉस का ये स्टेटमेंट है। थैंक यू। was really very good session. Actually, मेरे मदर इन लॉ का जो पैलिएटिव केयर, लाइक यहाँ पे अलग से पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट नहीं था, बट जो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर थे उन्होंने मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी थी। हम्म। मदर इन लॉ को मेरी मदर इन लॉ को लंग कैंसर था, तो हम्म। उसके लिए मॉर्फिन के आईवी थ्रू देते थे, और हाई डोज देना पड़ता था उनको, क्योंकि उनका पूरा लंग कोलैप्स हो चुके थे। हम्म। सो बट ओके, आज के सेशन के बाद मुझे पता चला कि नथिंग वाज रॉन्ग इन दैट, सब नहीं ठीक था। नहीं, ही वाज और वो पता है, लंग कैंसर के पेशेंट में तो जब सांस लेने की दिक्कत होती है, भले उनको पेन नहीं हो, तो भी एक ये सांस की दिक्कत के लिए एक अलग डोज है जो हम देते हैं, वो हम पेन के लिए नहीं दे रहे हैं। वो हम सिर्फ, क्योंकि वो ब्रीदिंग ईज करता है इन पेशेंट्स की, तो वो उसके लिए भी देते हैं कई बार। तो कई बार एक क्वेश्चन होता है कि पेन नहीं है तो क्यों दे रहे हो, बट पेन के लिए हम दे ही नहीं रहे हैं वो। तो ना, मॉर्फिन का बहुत अलग अलग यूज होते हैं। अभी तो सपोजिटरी आ गई है, कितनी तरीके की चीजें आ गई है मॉर्फिन की। इवन मॉर्फिन गागल्स, जो ये म्यूकोसाइटिस के पेशेंट होते हैं, तो ये आप मॉर्फिन के गागल्स करा दो और फिर उसी को अंदर लेने को बोल दो, तो वो डोज का भी काम करते हैं, और ये पूरा पेन उनका चला जाता है, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं वो उसके बाद। तो इट्स वंडर ड्रग फॉर कैंसर पेशेंट्स। एक मेरा क्वेश्चन था, जी। लाइक आपने बोला कि कोई भी मतलब खुद से ऑप्ट कर सकता है, बट हाँ। मोस्टली तो ऐसा ही होता, मतलब या तो हमने को मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा कि आप इसकी तरफ, मतलब आप सजेस्ट करो पैलिएटिव, या खुद ही अपन पैलिएटिव जो डॉक्टर्स है, पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स, उनसे कंसल्ट करते हैं।
एक ऐसा होता है वो कि देखो आप आपको कैसे मेडिकल, खुद से कैसे जा सकते हैं उस नहीं जैसे पे? आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, आप उन्हीं को बोलो, उनके कांटेक्ट में लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम्म, देखो ये छोटे छोटे सिम्टम ट्रीट करना, उनको ना तो उनके पास टाइम होता है, ना उनके पास इसकी एक्सपर्टीज होती है उतनी। तो हम्म, बेसिकली वो खुद भी आपको खुशी से किसी के पास भेज देंगे, बट आपका ट्रीटिंग डॉक्टर भेजे वो ज्यादा अच्छा है। ओके। पर वैसे आप वैसे भी जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट पैलेटिव वाला देगा वो आपके जो मेन ट्रीटमेंट चल रहा है उससे कोई उसका लेना देना नहीं होता है। तो हम्म, बेसिकली किसी का कोई ओवरलैप नहीं होगा ट्रीटमेंट में। तो आप वैसे हम्म। भी जा सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था मेरा। जी लाइक मैंने कई जगह पे पढ़ा है कोडिंग्स वगैरह या ऐसे कैंसर पेन मैनेजमेंट, तो वो भी पैलिएटिव केयर का ही पार्ट है या वो एक पूरा अलग हो जाता है? नहीं, देखिए अभी क्या हो रहा है ना, कैंसर पेन मैनेजमेंट में लोग क्या कर रहे हैं, जो क्रॉनिक पेन की ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं ना, बेसिकली ब्लॉक्स लगाने वाले, वो हम्म, क्योंकि पता है कि ये वाला पूल ऑफ पेशेंट्स बहुत बड़ा है, कैंसर पेन वाला। तो हम्म, और क्रॉनिक पेन थोड़ा मुश्किल होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई शोल्डर पेन है, ये बस इसमें वो ब्लॉक्स लगाए, उसकी उनकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली। तो अब इसीलिए उन्होंने उसको वो करना शुरू कर दिया कि कैंसर पेन भी, ये मेरे पास जो कल प्रिस्क्रिप्शन आया वो एक पेन वाले का ही है, ठीक है, उसने उसमें क्या किया है, उसने एक ही कैटेगरी के पेन किलर्स तीन तीन दे दिए हैं, ठीक है। तो वो आपने सेकंड स्टेप वाला दे दिया। WHO एनालिसिस लेटर कैसा होता है, बहुत सिंपल होता है। पहला, बिल्कुल अगर कम दर्द है आप पैरासीटामोल से काम चला लो या आप कॉम्बिफ्लेम ले लो, ठीक है। उसके ऊपर आता है ट्रेमाडोल, कोडीन, इस तरह के ड्रग्स होते हैं। और तीसरे स्टेज में आता है मॉर्फिन, फैंटेनिल, ठीक है। अब आपने सेकंड स्टेज के तीन ड्रग एक साथ दे दिए, पर वो सब एक ही रिसेप्टर पे काम करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है ना। मतलब ऐसा है कि एसिडिटी के लिए आप पेंटोप्रेजोल भी खा रहे हो, इसोमेप्रेजोल भी खा रहे हो, रेबिप्रोजोल भी खा रहे हो, सब एक जैसे तीन अलग अलग ड्रग खा रहे हो। तो वैसा करके, और मॉर्फिन को आपने जो मेन ड्रग है उसकी पेन की, उसको आपने आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को कर दी। अब वो तीन तो एक जैसा कितना रिसेप्टर पे लड़ेंगी, वो सब एक ही रिसेप्टर पे काम कर रही हैं, तो वो तो कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, एक ही कोई इफेक्ट करेगी उसमें से जो ज्यादा स्ट्रांग होगी तीनों में। और बाकी मॉर्फिन है जो बाकी अलग रिसेप्टर पे काम कर सकती है, तो वो आपने दी नहीं। तो ये एक्चुअली ये ओपियोइड ट्रेनिंग नहीं होती इन लोग की बेसिकली। और कैंसर में मेन स्टे तो ओपियोइड ही है। आपको बहुत फ्रीली आना चाहिए कि फैंटेनिल कब कैसे यूज करना है, इसका इन्फ्यूजन कब चलाना है, ठीक है, उसका मेथाडोन कैसे यूज करना है, कन्वर्जन कैसे करना है। तो ये सब ट्रेनिंग के बाद ही आता है, ये ओपियोइड की एक ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए ये इश्यूज हैं थोड़े से, कि ये जो बाहर हमारे पेन फिजिशियंस है वो बेसिकली ब्लॉक्स पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्लॉक्स भी यूज होते हैं, ये फोर्थ स्टेप होता है ब्लॉक का, बट कैंसर में बहुत ब्लॉक्स यूज नहीं होते हैं, दो चार ही हैं जो पैनक्रियाज वैनक्रियाज में लगते हैं। तो इसीलिए ब्लॉक इंटरवेंशनल उतना काम का नहीं होता है हमारे लिए मेनली तो ये ही दवाइयाँ हैं जो काम आती हैं। इसलिए हम्म। इश्यू होता है कि क्योंकि उनको। मोस्टली जो पेपर में एड्स वगैरह आते हैं उसमें वही कैंसर पेन मैनेजमेंट और पेन अब वो मैनेजमेंट ऐसी ये दवाइयाँ लिख देते हैं, उनको थोड़ा लगता है डिफरेंट। वो दवाइयों से, बट वो दवाइयों का बेसिक्स क्लियर नहीं है उनको अभी, ओके, ओके। इसलिए। तो बेसिकली जब तक कोई पैलेटिव मेडिसिन में ट्रेन नहीं हो, वो कैंसर पेन नहीं अच्छे से मैनेज कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। उसको पैलेटिव होना, क्योंकि उसको पता होना जरूरी है कि ये पेन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या इसके रीजंस है, क्या इसकी कीमो चल रही है। जैसे कई बार रेडिएशन होता है, ठीक है, रेडिएशन होने के बाद नेक्स्ट डे आप देखना पेन एकदम सीवियरली बढ़ता है। तो ये पता है कि ये रेडिएशन का है, ये रेडिएशन फ्लेयर अप है। तो इसको अगर हम खाली एनाल्जेसिक देंगे ना तो ये ठीक नहीं होगा, इसको स्टेरॉइड देना पड़ता है इस फ्लेयर अप के लिए। तो ठीक है, तो ये उस पेन फिजिशियन को पता होना चाहिए कि बेसिकली ये इसकी वजह से हो रहा है और हमको इसके लिए ये ट्रीटमेंट है। आप ओपियोइड का, मॉर्फिन का डोज बढ़ा दोगे तो भी पेन नहीं जाएगा, आप किसी का भी डोज बढ़ा दो, बेसिकली जब तक आप वो प्रॉपर कॉज को ट्रीट नहीं करोगे वो नहीं ठीक होता, ठीक है। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि कितने दिन इसको कंटिन्यू रखना है, बंद होने के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना पड़ता है स्टेरॉइड को कुछ दिन। तो ये सारी ना बहुत छोटी छोटी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो जाता है पेन फिजिशियंस के साथ। मैं थोड़ा सा क्लिनिकल हो गई। ओके। मेहुल भाई, आगे आप, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? या मेरा मेरा क्वेश्चन था, कैन यू hear me?
जी। मतलब आई आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग, जब मेरा ट्रीटमेंट था 2014 में यहाँ यूएस में, दैट टाइम हाँ उन्होंने मुझे ऑक्सीकोडिन दिया था, हाँ, ऑक्सीकोटिन है ना, हमारे में भी है। ओपियोइड। सो मुझे कॉन्स्टिपेशन जैसे उसका साइड इफेक्ट होता था काफी, तो मैंने लेना छोड़ दिया था, बट आई शुड बेयर द पेन, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन मुझे जमता नहीं था। तो फिर एक बार वो हाँ डॉक्टर ने आके मुझे समझाया कि तू क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब ही जैसे आपने एक्सप्लेन किया, and he tried to explain to me, and he said that yeah, this is to help you and not put you more in trouble. And then I realized कि हाँ ये, और मुझे सही में मतलब काफी एक्चुअली हेल्प हुआ वो ऑक्सीकोडिन से। थोड़ा अच्छा भी लगता था जब मैं लेता था बाद में तो हाँ, क्योंकि देखिए, या अगर हमारा ही सिर दर्द होता है जरा सा भी तो हम कुछ नहीं कर पाते, हमारा कहीं मन नहीं लगता। तो इतना राइट सीवियर पेन सहन करके हम सोचे कि इंसान राइट राइट। नॉर्मल लाइफ जिए तो कैसे पॉसिबल है, तो तो इसका पेन जाना तो बहुत जरूरी है। राइट, तो फिर इंडिया में जस्ट क्वेश्चन वाज लाइक ऑक्सीकोडिन यहाँ पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलता नहीं है, लाइक इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। तो इंडिया में ऐसे ड्रग्स मिल जाते नहीं हैं क्या नहीं, इंडिया ओवर में द काउंटर, ऑक्सीकोडन अभी अवेलेबल ही नहीं है। सिमिलर इसका काइंड ऑफ ड्रग्स कोई लाइक नहीं। ओवर द काउंटर? फैंटेनिल मॉर्फिन मिलते हैं ना, मिथाडोन प्रिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं, ओपियोइड प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, ओवर द काउंटर नहीं ले सकते कोई उसको दे? नहीं नहीं नहीं, वो ओके, तो गुड काउंटर गुड। तो नहीं है आपको, कोई नहीं, स्पेशलाइज ये नहीं। मॉर्फिन मेरी मदर इन लॉ के लिए लेते थे तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलता था। गुड गुड गुड। उसके बाद वो दो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, मतलब डॉक्टर का हम्म। प्रिस्क्रिप्शन प्लस नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन। उसमें उसका सील ठप्पा सब जाता है, क्योंकि इट्स अ काउंटेबल ड्रग ना, तो वो जो भी देगा उसको पूरा स्टॉक रखना पड़ता है अच्छा अच्छा। कि कितनी दवाई दी, कितनी टैबलेट्स दी, वो सब मिसयूज रोकने के लिए, क्योंकि यूएस में तो भयंकर वाला ओपियोइड मिसयूज हुआ था। तो इस चक्कर राइट। में उन्होंने सब बंद कर दिया था। बट एटलीस्ट इंडिया में अभी उतना नहीं, और इंडिया में अभी क्या हो रहा है ना कि पेरिफेरी में डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो उनको वो 3 दिन की ओपियोइड की ट्रेनिंग दे देते हैं और फिर उनको लाइसेंस दे देते हैं कि वो रख सकते हैं अपने पास। तो अगर जैसे अपने पास है स्टॉक में, वो स्टॉक उनको मेंटेन करना होता है, वो पेशेंट को लिख सकते हैं और वो खरीद सकते हैं, वो बेच सकते हैं विथ स्टॉक मेंटेनेंस। तो इसमें क्या हुआ ना, पेरीफेरी तक भी पेशेंट को मिलेगी मॉर्फिन। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ रीजनल सेंटर्स पे ही जाके मिलेगी। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज है कि ट्रेनिंग के बाद वो लाइसेंस दे रहे हैं इंडिया में। सही है, अच्छा है। गुड गुड। और कोई क्वेश्चंस है किसी के पास? आई थिंक एनी मोर क्वेश्चंस? बहुत बेसिक सी चीजें हैं बस, पीयूष भाई। नहीं, आपने काफी मतलब आपका एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल में था कि एक्चुअली एक्चुअली मैंने देखा कि आपसे पहले भी मेरी मॉर्फिन के ऊपर 2-3 बार बात हो चुकी है मैम से। तो आपने ही बताया था कि मॉर्फिन का यूज एज पर द इंटेंसिटी ऑफ द पेन ही होता है। बट देन मैंने देखा है यहाँ पे, मतलब अहमदाबाद में भी जितने डॉक्टर्स हैं, मैंने देखा है कि 10 मिलीग्राम 1 TDS, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं लिखते लोग। और मैंने ये भी काम देखा है कि वो करेगी, वो इतना काम नहीं करता। नहीं करेगी, क्योंकि अब 4 घंटा ही अब तो रहती है वो। हाँ, अब उनको बोलते हैं कि या इसका डोज बढ़ा दो तो वो मना करते हैं। तो ऐसे टाइम में मतलब ये थोड़ा दिक्कत वाला, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के ये और पता प्रोटोकॉल्स है अलग इसका होते हैं। एक ये मतलब भी है पीयूष आई भाई थिंक वो इतना के कि मॉर्फिन के प्रोटोकॉल्स के बारे में इतना जानते नहीं है, ऐसा लगता जानते ही है। नहीं है वो, क्योंकि और उसको इसकी वजह से प्रिस्क्राइब करना पेशेंट, आना चाहिए। मैं हाँ, आपको एक बात तो बताऊं, वन, हमारे यहाँ कोई भी ओपियोइड का प्रिस्क्रिप्शन बिना ब्रेक थ्रू पेन के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं जाता है। क्योंकि कैंसर में क्या होता है, 2 या 3 स्पाइक्स आते हैं सीवियर पेन के। तो अगर सपोज 6 बजे किसी ने मॉर्फिन ली है, अब उसका नेक्स्ट डोज 10 बजे है, और 8 बजे उसको अगर ये सीवियर पेन आया तो वो क्या करेगा। तो इसके लिए ब्रेक थ्रू वापस हम मॉर्फिन जितना भी टोटल डोज ले रहे हैं उसका 1/10 डोज में उसको बीच में 8 बजे फिर ले लें। फिर 10 बजे वाला डोज रेगुलर टाइम पे लेना है, वो रेगुलर चलेगा ही। बट बीच में 4 बार वो और एक्स्ट्रा डोज ऐसा ले सकता है। तो अगर कोई ओपियोइड प्रिस्क्रिप्शन दे रही हूँ और बिना ब्रेक थ्रू पेन के लिए दे रही हूँ, तो ये मतलब मेरी बहुत बड़ी गलती है ये। क्योंकि उसको वो पेन आएगा ही, मतलब वो क्यों सफर करेगा। फिर वो बोल देगा मॉर्फिन काम नहीं कर रहा हमारा। बस वैसा ही होता है। मतलब फिर तो लगता है ये काम ब्रेक नहीं थ्रू करता पेन तो, का लेकिन प्रिस्क्रिप्शन सब हमेशा चल। साथ में होना चाहिए पेशेंट के। और मॉर्फिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन ही, अगर उसको पहले से मैनेज किया जाए तो आई थिंक वो हाँ, सबसे उसको बढ़िया तो ड्रग है। 2-2 3 दिन तक कुछ नहीं है। मैं तो घर पे सपोजिटरी भी दे देती हूँ कि खुद ही डाल लो, नहीं हो रही है 2 दिन 3 दिन में तो सपोजिटरी यूज कर लो। एनीमा भी दे देते हैं हम तो घर पे, तो लोग एनीमा भी लगवा लेते हैं। तो इसका तो कोई भी हाँ, सोल्यूशन निकल आता है, एनीमा दे दिया, तीसरे दिन चौथे दिन एक बार साफ हो गया ठीक है, फिर उनको नॉर्मल हो जाता है।
फिर 3-4 दिन वो राह देखते हैं, तब तक बिसाकोडिल सुबह शाम दे दो, या मूविकॉल होता है वो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, कुछ भी सुबह शाम चलता रहता है, थोड़ा बहुत काम चलता रहता है, बट वो मैनेजेबल है। उसके लिए ओपियोइड को नहीं प्रिस्क्राइब करना इज नॉट गुड, वो तो हम मैनेज कर लेते हैं। और जब बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वैसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो फिर हम रोटेट कर देते हैं, क्योंकि मॉर्फिन का सबसे ज्यादा है, फैंटेनिल ऑक्सीकोडोन का उतना नहीं है, होता है बट मॉर्फिन से कम है, तो फिर उसको फैंटेनिल पे शिफ्ट कर देने का। अगर बहुत ही परेशान हो रहा है पेशेंट, लाइक कई बार तो लोग आते हैं महीना महीना भर की हिस्ट्री लेके, तो फिर, और आजकल तो इसके लिए भी एक मिथाइल नाइट्रोक्सोन करके एक ड्रग आई है, सबक्यूटेनियसली लगाते हैं, इसको पामेरा बोलते हैं, पेरिफेरली एक्टिंग मॉर्फिन का वो रहता है, ये सॉल्ट है। ठीक है, तो ये पेन आपका नहीं रिवर्स करता है, एंटागनिस्ट है, ये पेन नहीं रिवर्स करेगा, ये खाली कॉन्स्टिपेशन रिवर्स करता है। ठीक है, तो ये आजकल सबक्यूटेनियसली वो भी मिलता है, तो वो लगा देना बहुत ही ज्यादा हो जाए तो अभी मुझे पता नहीं इंडिया में मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा होगा अब तो। मिथाइल नाइट्रोक्सोन करके एक ड्रग है, तो ना सब चीज की सोल्यूशन है, पता होना चाहिए बस क्या है। राइट। और नहीं वो अल्टीमेट गोल यही है कि पेशेंट सफर नहीं करे, बस उसको पेन है तो उसका पेन ठीक रहे, बाकी चीजें तो सब मैनेज हो जाती है। वॉमिटिंग्स है, जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट एडमिट है, अभी उसकी सर्जरी हुई, उसकी जीआई सर्जरी, उसका एनास्टोमोसिस था, वो पूरा नैरो हो गया। अब वो कंटिन्यूस वॉमिटिंग करती है, कंटिन्यूस, मतलब आप सोच सकते हो कितनी, अब ना हमको एक उल्टी हो जाए तो हम कैसे हो जाते हैं, और जो अगर दिन में 12-15 वॉमिटिंग्स कर रही है, बट उसको अभी मैंने ऑक्टोटेट इन्फ्यूजन, मैंने बोला ना 1 महीने से चलाया, अभी उसको लॉन्ग एक्टिंग लगा के इसको मैंने टेपर करके बंद कर दिया, अभी दिन में 1 या 2 वॉमिटिंग पे आ गई, खाने लगी। इतना अच्छा इफेक्ट आया उसका, नहीं तो आप सोच नहीं सकते थे उसकी सफरिंग। मैं उसको देखती थी तो मुझे दया आती थी कि यार पूरा टाइम लार्ज वॉल्यूम वॉमिटिंग, क्योंकि आगे जा ही नहीं रहा था कुछ, पूरी इंटेस्टाइन ऐसी ब्लॉक हो गई, तो हो जाता है। पर अभी वो ठीक है, अभी 1-1.5 महीने बाद अब वो घर जाने लगी है, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, शाम को घर चली जाती है बच्चों से मिलने, तो इसमें भी वो बहुत खुश रहती है, तो है ना, सब कुछ ओवरऑल रहता है। मेरा काम क्या है, वो खुश रहे, वो परेशान ना हो, वो खुश रहे, तो मैं इसको घर भेज देती हूँ कि बच्चों से मिला, पास दे देती हूँ 4 घंटे का। ठीक है, और 1-2 वॉमिटिंग मैंने उसको समझा दिया कि 5 तक की वॉमिटिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे, पर अभी वो 1-2 पे है, तो इस तरह से मैनेज हो जाती है लाइफ उसकी। ठीक है, अभी वो खुश है इस चीज से, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 2-3 वॉमिटिंग तो मेरे को होगी ही, तो जितना भी है बैलेंस करके काम चलाते हैं। थैंक यू सो मच मनीषा मैम, अपने थैंक इतना यू वेरी मच, इतना आपका बहुत टाइम। अच्छा लगता है मुझे पैलेटिव के बारे में बोलना। नहीं नहीं, और काफी इन्फॉर्मेटिव, मतलब मैं हमने, बोलती ही रह सकती हूँ, ऐसा है। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ आपका भी टाइम लिमिटेड है और आप टाइम निकाल के आ रहे हो, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम, जी। मैंने मतलब इसके पहले भी आपके सेशंस में मैं रहा हूँ, लेकिन एवरी सेशन आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू। तो मतलब रियली इट इज, आई एम श्योर, मतलब जो भी है रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे बाद में, काफी बेनिफिट होगा। एंड वी हैव मेड अ स्मॉल थिंग फॉर यू, मतलब वी कैन नॉट थैंक यू इन एनी अदर वे, बट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वी हैव, we want to just appreciate you, a small kind of token हाँ, for you. You can feel free to share it, or if you want to make any changes, let me know. I can change it. I'll email it back to you. And oh, somebody wanted me to speak in English. yeah, I told them that, yeah, but I think they left, so it's मुझे तो okay. लगा हिंदी ज्यादा नहीं, बोल। नॉर्मली हिंदी इंग्लिश में बात किया तो लोग बोलते हैं हिंदी में बात करो, तो एनीवेज आपके जो हाँ, स्लाइड्स थे दे वर इन इंग्लिश, सो आई थिंक दे वर प्रीटी मच इजी टू अंडरस्टैंड. So जी, anyway, if he comes back, if he has any questions, we'll let you know. या And श्योर। any more questions from people who are there? Anjali ji, Santosh. आपके ना, आपके ग्रुप में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बट मैं उसको बहुत खोल नहीं पाती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि किसी को कोई मेरी एडवाइस की जरूरत है रिगार्डिंग दिस सिम्टम्स, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज, उनको मेरा नंबर दे सकते हैं, मैं डायरेक्ट उनको जवाब दे दूंगी, या जो भी मेरे से हेल्प हो सकती है आई विल ट्राई टू हेल्प देम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर हमको ऐसे लगे कि यू नो यू कुड हेल्प देम, वी विल डेफिनेटली
ask you first, उनका केस बताएंगे आपको, और फिर अगर आप ओके करेंगे तो we'll get in, हाँ we'll get ठीक है, them. अगर मेरी वजह से किसी की कोई थोड़ी भी हेल्प हो जाए, उसका तकलीफ कम हो जाए, तो आई विल बी सो हैप्पी। No, definitely. Thank you so much, and let's conclude this here, and we will call you again and again. हम आपको छोड़ेंगे नहीं. अगली बार ना हम एथिकल इश्यूज पे बात करेंगे। पता नहीं, पर अब आपका ग्रुप मुझे नहीं पता कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, बट एथिकल इश्यूज आर रियली, क्योंकि कई बार पेशेंट के रिलेटिव्स भी इस चीज को रहते हैं कि ये करे ना करे, वो पीछे पड़ते हैं कि ये सब करो, नहीं करना चाहिए, बट फिर वही एंड ऑफ लाइफ पे ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं बोली नहीं कि, वरना वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि ब्लड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, है ना, प्लेटलेट्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए, तो बट थोड़ा क्लिनिकल हो जाता है, तो मुझे नहीं पता ग्रुप के हिसाब से। नहीं, तो definitely, and maybe next time if you can get 1 or 2 patients of yours to talk also, मतलब उनका experience तो maybe वो यहाँ पे तो सब कर भी वाले हैं, हाँ इंग्लिश वो no worries, we can plan that. चलो, ओके, चलो, थैंक यू सो thank मच। you everybody for joining, and thank थैंक you यू। Dr. Thank Manisha you. Agarwal. Thank you. Thank Thank you, you. Dr. Thank you all. Manisha. Thank you so much.